quadratic and 3 constants here. We need come. सर सनसेट थोड़ा लेट हो गया। अच्छा लेट हो गया, जाओ, इतना लेट अलाउ नहीं करते। मैं जाऊँ? जा मैं जाऊँ? चल 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 सच में जाऊँ? अरे तू जा रही ओके सर। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा खोपड़ी तो साले का Welcome back everyone. We are going to study about today in this class we will study about quadratic equations chapter of class 10. So let us see how to begin this thing. Quadratic तो बाद में, equations बाद में, पहले let us see what is a polynomial first. In class 9 you must be knowing polynomial p of x is given by a0 x to the power 1 a1 x to the power 2 like this up to an x to the power n whatever, like any number of coefficients and any number of variables with different varying powers. An expression like this separated by mathematical parameters plus minus and all this is called a polynomial, you know, right? But the powers must be integral, positive integral, right? x नीचे नहीं आएगा, fractional root over नहीं होगा, तो उसको polynomial बोलते हैं, correct? So for example x plus 3 x square minus 2 3x cube minus 4x square plus 3, so many polynomials you have seen and you know how to find the zeros and all that, some of them you know, okay? So if let us discuss with a very simple thing. If we have a polynomial, for example 3x cube minus 2x square plus 6. Okay, so polynomial is basically categorized into many types based on the number of terms: monomial, binomial, trinomial, or you can say polynomial, and based on the highest power of the variable. There is a single variable here x, but it has different powers in different terms. So based on the highest power, which is 3 here, it is called as cubic. If the power is 1, it is called linear. If the power is 2, that means if the degree of a polynomial is 2 and having a single variable, it is called a quadratic polynomial. Not equation, quadratic polynomial. Understood? You understood? So any polynomial having single variable x but degree 2 is called a quadratic polynomial. Okay, this much you understood? Yes. Fine. This is pre, also you have studied this in class 9, so nothing to understand here. But in case of a quadratic equation, now when does the polynomial become an equation? Whenever you put the polynomial equal to some constant, that means this equal to sign, when you put it, it becomes an equation, right? Because you are equating it with somebody. You are प्लेन क्या है, क्या जाने तो क्या है, तुम्हें जाना है उसमें? Too late. So अब इक्वेशन जो है वो तभी होता है जब इक्वालिटी आया। अर्लियर को ऐसा लिखते 2x square minus 3x plus 6. Understood? This is a polynomial. But if I put it equal to 3 or equal to 0, we call it a quadratic equation. Understood? Yes, sir. So in this way we understood what is a quadratic equation very nicely. चलो अच्छी बात है. Now let us first see how a polynomial or a quadratic equation with degree 2 is actually looking like on the graph. Okay, how many zeros it has? You know in class 9 also that the degree of the polynomial is same as the number of zeros, maximum. जितना डिग्री होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, right? So if number of zeros are n, if there are n number of zeros, then there are also n number of factors.
right? Factor theorem in class 9 you have studied. If a p of a is 0, x minus a is a factor of the polynomial. That also you know in class 9. So all of this concept I am assuming you know. If you know, then in this chapter we will go on to discuss about a quadratic equated to 0. Why? Let us see. Let us see, for example, a quadratic equation x square minus x or plus x plus 3. X square plus x plus 3. Let us have a look at how it is behaving. I draw the Cartesian axis x and y divided into 4 quadrants, and suppose this is x and this is y, and this whole polynomial, let us take it as y. Understood? If I put in place of x and y, if I put in place of x 0, you can see y will come out to be 3, right? If I put x 1, y will come out to be 3 plus 4 plus 1, which is 3 plus 1 plus 1, which is 5. Am I correct? So I got 2 points, 0 3 and 2 3. Suppose this is 0 3. I got another point 1 5. This is 1, x is 1 and y is 5. 1 2 3 4 5 somewhere here. Okay. Similarly, if I find more points, like if I put in place of x minus 1, how much I will get? Minus 1 plus square 1, minus 1 0 plus 3 3, right? So minus 1 पे आया कितना? -1 3. माइनस 1 पे भी 3 आया, समझ में आया कि नहीं? 0 पे भी 3 आया था, माइनस 1 पे भी 3 आ रहा है. अच्छा, तो अब जब इसको ऐसे ऐसे पॉइंट हम निकालते जाएंगे, we will find a lot of points. We will get something like this. Understood? Yes, sir. This U-shaped or almost like a U-shaped figure which we get if we plot the points of a polynomial variable against the function or variable against the value of the polynomial, then we can say we will get something like a shape of a parabola. This shape is called a parabola. Understood? So quadratic polynomial when plotted in a x versus p of x plane, we obtain a parabolic shape. This can be like this, can be like this, or like this, or like this. In any shape possible, it can also be inclined at an angle like this. So any direction it can be. That does not matter to you now. But did you understand how does a quadratic equation looks? Or how does a quadratic polynomial looks on the graph? It's a parabola. Okay. Okay. चलो. तो ये समझ में आ गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोलिक शेप में होता है. Let us come on to general form. Okay. Let us come on to the general form. General form is ax square plus bx plus c if it is an equation equal to 0. Okay. Where a, b, c are belonging to real numbers. This symbol stands for belongs to, this is real, means a, b, c जो है वो real constants हैं. समझ में आया? और x जो है वो वेरिएबल है. हाईएस्ट पावर x का कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है. Highest power is 2. So then you know it is a quadratic equation. Got it? General form? Yes. Fine. So अच्छा इसका डिग्री पता है तो zeros that will be also at max 2, maybe 1 also, but at max 2. Factors that also 2, right? And what else? Nothing else. So zeros, degrees, factors सारे 2 हैं. Got it? Clear? Understood general form? Because general form को यूज करके ही सब कुछ करेंगे.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax square plus bx plus c की फॉर्म में है and in the shape of a parabola which may open upwards or downwards depending on the sign of a. ओके सो अब जब हम समझ ही गए ये है और इसके दो जीरोस हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो जीरोस हैं हाउ टू फाइंड, यस और नो, Yes. या फिर जो फैक्टर है कैसे निकालें, दैट मींस सॉल्विंग. ठीक है, अब सॉल्विंग से पहले और कुछ है जो तुम्हें डाउट है, जैसे कि जनरल फॉर्म समझ गए, ग्राफ समझ गए, ठीक है. अब इस ये ग्राफ कभी इधर भी होगा इधर भी होगा, ये सब दिस विल स्टडी इन क्लास 11 इन कोनिक सेक्शन चैप्टर. बट नाउ फॉर योर क्लास 10 एग्जाम you must know this much only. Okay, general form is ax square plus bx plus c equal to 0 and graph is a parabolic shape. Okay, अच्छा एक और चीज है before we go on to factorization, एक और चीज है, चीज यही है कि this quadratic equation you know it has two zeros. अच्छा zeros क्या होते हैं? The values of the variable at which or for which the whole polynomial becomes 0. मतलब यहाँ पे x की जगह क्या डालने से ये जो पूरा p of x है, polynomial in x है, वो 0 हो जाएगा, उसी को बोलते हैं zeroth polynomial. अच्छा अगर हम ग्राफ कर रहे हैं with x and p of x, if we are doing a graph with the variable versus the polynomial, then you know maximum number of zeros 2 होता है and you know the shape is parabolic. तो ऐसा नहीं होगा, think about it. p of x जहां 0 होगा या फिर इसको y बोल दो, इसी को y बोल दो, भाई ये y है. And on the xy cartesian plane if you put the points and join them, you will see the graph will cut the x axis at 2 points, right? Definitely. Can it cut more than 2 points? No. If it cuts more than 2 points, it must be a cubic or a biquadratic equation, right? It cannot be a quadratic. Okay, ऐसा हो सकता है. तो quadratic equation जो है, it will cut the graph at maximum 2 points. This much you understood? अच्छा, points पे यहाँ पे x axis को क्यों काटता है? यहाँ पे डाउट है क्या? अच्छा, x axis को इसीलिए काटता है क्योंकि वहीं पे x तो होता है, y 0 होता है. x तो होता है मगर x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब y 0 हो गया, मतलब p of x 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया. तो ये जहां 0 होता है उसी x के वैल्यूज को 0 बोलते हैं. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उन दोनों जीरोस को हम एक नया नाम देंगे अल्फा और बीटा. अल्फा और बीटा, बीटा. ठीक है, समझ गए? अल्फा 0 और बीटा 0, ये दोनों पॉइंट्स में वो काट के एक्सिस को जाएगा. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के नाम याद रखो, अल्फा और बीटा. थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, उसके बाद क्वाड्रेटिक में घुस जाएंगे. ठीक है, अब ये जो अल्फा और बीटा है ये ऐसे हो सकते हैं. अगर पॉलिनोमियल ऐसे हो गया, मान लो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, तो वहां पे अल्फा और बीटा सेम हो गया. तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 है और लेकिन दोनों एक ही है, बोल सकते हैं एक ही है. अंडरस्टूड? यूनिक मतलब द रूट्स आर आइडेंटिकल. यहां पे क्या थे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, यहां पे क्या है? द रूट्स आर इक्वल. समझ में आया? अंडरस्टूड दिस टू थिंग्स? देखो ना, यहाँ पे एक ही पॉइंट में x एक्सिस को काट रहा है ना. अब x एक्सिस को जहां काटता है वहीं तो y 0 होता है और y ही तो है p of x हमने लिया है. Yes. अच्छा, अगर देखा जाए एक ऐसा सिचुएशन जहां पे
the graph is not touching the x axis at all. x है, y is equal to p of x है, लेकिन the graph is not at all cutting the x axis. So in this situation you can say it has no zeros. Does it have a zero? No. At any point of x does the value of y become zero? होता है? No. अगर जीरो होता तो ये पॉइंट ऊपर नहीं होता यहाँ पर, समझ में आया? सो इन दिस केस यू कैन से अल्फा और बीटा डोंट एग्जिस्ट, राइट? नो रूट्स, अंडरस्टूड? Yes. सिमिलरली इफ देयर इज अ केस लाइक दिस, यहाँ पे भी नो रूट्स, समझ में आया? है क्या? Is it crossing the x-axis at any point? No, If sir. you produce it infinitely, कहीं मिलने वाला नहीं, ये वन डायरेक्शन में चला गया, लौट के नहीं आते, ठीक है? So, if I can rub this part, I hope you have written. Look carefully. If there is a case like this, okay, and imagine ऐसा क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं, तुम्हें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है that keeps on extending, वो कभी खत्म होता है क्या? You can put on any values of x and further like this and it will keep on extending, right? ऐसा ना? So अगर ऐसा दिया है यहाँ तक, तब भी दो जीरोस हैं, because after putting some higher values of x or some lower values of x than this, you will extend the graph, you will get the graph to cut the x-axis in such a point which is farther from what is given. So यहाँ पे भी two real roots हैं, है कि नहीं? Once again, so यहाँ पे भी two real roots हैं, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पे two real roots हैं, तो तुम देखो जितने केस हमने डिस्कस किया सब में रूट्स हैं, सिर्फ एक ही केस में रूट्स नहीं है, या तो ग्राफ उल्टा है मतलब नेवर टचिंग इट, और ग्राफ ऊपर है नेवर टचिंग इट, अंडरस्टूड? सो यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस that the graphical representation of quadratic equation is as follows, as I said, और maximum number of zeros दो हो सकता है, कभी एक हो सकता है, कभी नो zeros भी हो सकता है, समझ में आया? ये तो समझ के हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट अस कम ऑन टू उसके रूट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लें। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। ये जो रूट्स हैं इनके सम और प्रोडक्ट तो आए थे, लाइक द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इफ द पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर plus bx plus c equal to 0, then the sum of the roots came out to be minus b by a, and the product of the roots came out to be alpha into beta, which is c by a. This we will see how this came out. If you want to know, we will see in the polynomial chapter. For now, अगर तुम 10th की तैयारी कर रहे हो इस साल के लिए तो ये तो तुम्हें पता ही है, लेकिन अगर तुम कोई 9th के बच्चे हो जो 10th में आए हो तो थोड़ा सब्र रखो, फिर देखेंगे कैसे निकलेगा पॉलिनोमियल्स वीडियो में, समझ में आया? सो सम ऑफ द रूट्स ये और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय a। अच्छा abc क्या है? यही सब है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 एंड द कांस्टेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, अंडरस्टूड? सो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लेके बहुत सारे चीज भी हैं, जैसे जनरल फॉर्म को थोड़ा निकालने के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया है तो यू कैन से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये एक फॉर्म भी है, याद रखो, यहीं से आया है वो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाके वहां से ये आया है, तो ये फॉर्म है,
लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली डाल सकते हो क्या, सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे डाल सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? ओके, वन मोर थिंग, अगर तुम्हें बस अल्फा और बीटा जनरली पता है तो इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन तो यही बनता है ना, अगर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं? If alpha and beta are zeros of the polynomial, then x minus alpha and x minus beta are factors of the polynomial. Do you understand? So if I multiply x minus alpha into x minus beta, I will get the quadratic polynomial, no doubt, right? अच्छा, तो ये अगर निकालोगे तो ये भी तो वही आएगा, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This is also the same thing. Okay, so quadratic equation can be expressed like this, and like this. ये तीन मेथड है। यहाँ पे तुम्हें जीरोस पता है, यहाँ पे तुम्हें सम पता है, और यहाँ पे तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अंडरस्टूड? ये सब एलसीएम लेके करोगे तो यही आएगा। तीनों एक ही चीज है। अंडरस्टूड और नॉट? यस। अच्छा, तीनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। इसीलिए देखो, एक ही quadratic polynomial, only one quadratic polynomial also can be expressed in many ways. How? Suppose the polynomial is, for example, x square minus 2x plus 3. This same polynomial, if I multiply it by 2, it will become 2x square minus 4x plus 6. अब ये दोनों अलग है कि सेम है, ये बताओ? They are the same. इसको लेके प्लॉट करोगे ग्राफ में, उसको लेके प्लॉट करोगे, एक ही चीज आने वाला है। Got it? Yes. अच्छा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3x square minus 6x plus 9, it is also the same. So a quadratic polynomial, if you multiply it with any constant, does not change, its behavior does not change, its roots does not change, right? They don't change. x square minus x plus 1 जो है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो x square 2x square minus 2x plus 2 जो आएगा वो भी सेम ही आने वाला है। अंडरस्टूड और नॉट? सो अगर हम इसको देखें तो हमने देखा कि ये सारे चीजें जो हैं सब सेम ही है, ऐसा ना? यस सर। तो करें क्या? तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, we can say all of this to become a quadratic polynomial may become like this, like x square k लिख दिया बाहर, understood, is equal to 0, where k is any real constant. समझ में आया कि नहीं? सो मेरे बोलने का मतलब यही है कि a quadratic equation, a single quadratic equation may be expressed in infinite ways by multiplying any constant, but will still remain the same polynomial. It may look different, but it's not different. Did you understand? Okay, so learn to identify that. इसीलिए हम यहाँ पे k लिखते हैं. Whenever it is given a question to find a quadratic polynomial whose zeros or roots or sum of the roots and product of roots are given, remember to put a k outside. Not because you have to, but because you don't know what is the polynomial looking like. So putting the k here ensures that you understand the generalization of a single quadratic polynomial into many infinite forms. Understood? So ये लिख लेना. Okay, we understood quadratic polynomial का general form. We understood quadratic polynomial का graphical representation. We understood quadratic polynomial how many zeros are there. We understood quadratic polynomial में how many zeros are there, or we also understood what are the sum and product of the roots. We also understood the general form in terms of sum and product, the general form in terms of the coefficients. Clear? यही है quadratic polynomial.
अच्छा, तुम्हारे क्लास 10 में क्या है इसमें? क्लास 10 doesn't deal with this. Polynomial chapter deals with what we learned now. But quadratic equation chapter deals with solving a quadratic polynomial algebraically. You cannot solve graphically. Can you find infinite points and put them? No. No. See, linear equation में क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था ना, तो दो पॉइंट निकाला और उसको ज्वाइन कर दिया, पूरा लाइन हो गया। ये आंसर। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो दोनों कर दिया, बोला कि यही आंसर। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो यू शेप है, ये कहां से लाओगे? एक पॉइंट निकालोगे क्या? नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज नॉट लीनियर। So to solve a quadratic polynomial, we need certain algebraic methods. First one is solving by factorization. Solving by क्या? Factorization. Factorization. जिसको बोलते हैं middle term splitting. सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, देख लो, समझ लो, इसको भूलो मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 में आते हैं और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में गलतियां करते हैं। So don't ponder here, look carefully. एक बार समझ गए कभी भूलोगे नहीं। ax square plus bx plus c equal to 0 है जनरल फॉर्म, ठीक है? तुम्हें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यही है मिडिल टर्म। इसको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, दो ऐसे चीजों में जिनको ऐड करने से मिलेगा b, लेकिन मल्टीप्लाई करने से मिलेगा AC। अंडरस्टूड? एयर कंडीशन नहीं, ये A और C का मल्टीप्लिकेशन वही। समझ में आया कि नहीं? तो फिर से सुनो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे ऐसे दो टर्म्स में, जिसको ऐड करने से मिलेगा तो B, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा AC। याद रहा ये चीज? Yes sir. बस इसमें और कुछ प्रॉब्लम तुम्हें कभी होगा नहीं, क्योंकि हम देखते हैं एक दो एग्जांपल करके, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे क्लास में। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 160। फैक्टराइज दिस। अच्छा, फैक्टराइज करने का पर्पस क्या है? टू फाइंड द फैक्टर्स एंड हेंस फाइंड द रूट्स। सो रिमेंबर दैट when you're factorizing, the purpose is to find the factors if asked or the roots. Okay, so if they are equal to 0, if this equation is equal to 0, you can say to factorize it, I will have to split 37 into two such things, so that when I add them, I will get b, which is 37. When I multiply them, I will get AC, मतलब 160 into 1, which is 160 itself. करेक्ट है? Yes sir. सो ऐसा क्या है? 32 और 5 है, ठीक है? अच्छा, सपोज यहाँ से डायरेक्टली 32 5 तुम्हें 160 नहीं पता है, what you can do, you can take the 160 and prime factorize it. Understood? प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उनको थोड़ा सीधा लिखो, 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 और कितना है? 5 ही है। 2 into 2 into 5। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर्म में तुमने एक्सप्रेस किया है, यहां से यू हैव टू मेक ग्रुप्स, ठीक है? टू फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, if it is not evidently clear from the P what is the splitting, what you will need to do is to prime factorize, and after writing like this you have to make group। अब यहाँ पे तुम्हें दो ग्रुप बनाना है फैक्टर्स का। ऐसे ग्रुप बनाओगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 160। अब इसमें से जो भी दो ग्रुप बनाऊंगा 160 ही तो मिलेगा, क्योंकि ये 160 के फैक्टर्स है। अब 150 तो नहीं मिलेगा, 200 तो नहीं मिलेगा। कोई भी ग्रुप बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, मल्टीप्लाई करने से 160 ही मिलेगा, कुछ और मिलेगा क्या? नो। लेकिन तुम्हें ग्रुप ऐसा बनाना है, ऐसा ग्रुप बनाना है
जिसमें ऐड करने से भी तुम्हें 37 ही है। ऐसा नहीं कि ऐड करने से कुछ भी हो। तो किस पे फोकस रखोगे, मल्टीप्लाई पे कि ऐड पे? ऐड पे, दोनों पे तो है ही। देखो मल्टीप्लाई किसी भी रूप में इसमें से करेंगे तो उसको 160 वो आएगा, क्योंकि वो उसी के फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, लेट अस 1 सेकंड। So since they are the factors like this, whatever factor groups you take, they will become 160 only. But a certain grouping will give you the sum to be 37. जैसे कि यहाँ पे मैं 5 2s को ले गया 32, एक 5 को ले गया 5, 32 plus 5 कर दिया 37। और कोई ग्रुप होगा तो नहीं होगा। So this you keep in mind. Understood? So if I am done with this, I can say my splitting is over. What I can do is I can do x square plus 32x plus 5x plus 160. अब यहाँ से x कॉमन लो, x plus 32. Whatever I get here, blindly write here x plus 32. Okay. Then you have to think, what should I multiply to get this? What should I multiply with this to get this? Of course x से 5 multiply करोगे तो 5x आएगा, और 5 into 32 160 है ये। So I am correct. Then you can take x plus 32 common from these two terms. Here you are left out with x, there you are left out with 5. So this is your answer. Factorization is over. If someone asks you what are the zeros, you can say x is equal to minus 32 and minus 5. ये अल्फा है और ये बीटा है। समझ में आया? Understood? Yes sir. So by middle term factorization, a lot of questions can be solved. A lot, but not all. Understood? इसीलिए ये मेथड काफी नहीं है। ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में याद रखना, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, मे बी मे नॉट कम, क्वेश्चंस में भी लिटिल बिट डिफिकल्ट आल्सो। ऐसा भी होता है 2 रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस कुछ भी, तो तुम्हें वहां पे भी वही करना है। अगर तुम्हें मेथड पता है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जब हम क्वेश्चंस का क्लास करेंगे तब हम देखेंगे कोई भी क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो फार्मूला मैंने बताया उससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट फॉल्टरिंग। ओके, बट रिमेंबर द फंडा। ठीक है, ऐड होके b मल्टीप्लाई होके ac। अंडरस्टूड? इफ यू रिमेंबर दैट मच यू विल नॉट फॉल्टर। दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन अगर नहीं हुआ तो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना? समझ में? This quadratic formula, it has come from the method of completing squares only. ये एक और मेथड है, ठीक है? Now this completing squares is not in your course this time. But ये है क्या? ये है कि इसको जबरदस्ती एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए उसके इच्छा के विरुद्ध। परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना ही है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा। दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड। नाउ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड ओनली क्वाड्रेटिक फार्मूला हैज कम। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, डायरेक्टली मैं बता देता हूं। वो बोलता है कि जो इक्वेशन ऐसा है ना, उसका आंसर ये है कि अल्फा और बीटा जो है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ पे प्लस लो तो अल्फा, माइनस लो तो बीटा, या वाइस वर्सा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली। बट ये आया कहां से? ये आया तो यहीं से, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। अब देखते हैं हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाते हैं कि नहीं, और ये आता है कि नहीं। लेट अस गिव इट अ ट्राई। सो लुक एट दिस इक्वेशन। तो मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, मुझे पता है कि a plus b का होल स्क्वायर क्या है? a square plus b square plus
2ab है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा ये तो मुझे पता है। अच्छा इसको देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है। अगर मैं x प्लस समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर पाऊँ इसको तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहले टर्म को हम लिखेंगे x स्क्वायर की तरह। अच्छा ax स्क्वायर किसका स्क्वायर है? रूट x का। Root x. ये पहला स्टेप हमने कर लिया, हमको a स्क्वायर मिल गया। अच्छा ये जो 2ab टर्म है ये क्या है? यहाँ पे bx है, x टू द पावर 1 जो है ना, क्योंकि यहाँ पे x है फर्स्ट टर्म में, तो 2ab टर्म में भी x आएगा। तो हम साइड में थोड़ा देखते हैं, अगर मेरा 2ab टर्म जो है वो bx है, ये b और ये भी अलग है, इसको कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मान लो ये 2ab टर्म ऐसे लिख देते हैं, 2ab कैपिटल लिख देते हैं उसको, ठीक है। सो ये जो a है, दिस a is nothing but root x, ओके। हमने लिया इसी का स्क्वायर, a स्क्वायर रूट x। अब b क्या है? b पता है क्या? पता है या नहीं पता है? नहीं पता है, इसी को निकालेंगे bx, x गया कैंसिल और b क्या है? b बाई 2 रूट। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसको हम a स्क्वायर कर रहे हैं, इसको 2ab कर रहे हैं और जो बचा उसको b स्क्वायर में डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आया? तो ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर कंप्लीट है। अब सेकंड टर्म मुझे मिल गया, जो 2ab का b होगा वो यही होगा। तो इसको अगर लिखूंगा तो लिखूंगा ट्वाइस ऑफ a, कितना है? रूट x, और b कितना है? b बाई 2 रूट है। समझ में आया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब अगर ये b है तो मुझे b स्क्वायर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? Yes, sir. लेकिन यहाँ में b स्क्वायर है क्या? नहीं है, c है। तो I can provide a b square myself and take it. I can add 1 and subtract 1 also from any equation. कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हारे वजन में मैं 1 किलो ऐड कर दूं और 1 माइनस कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा वजन इनफाइनाइटली हाई है। समझ में आया कि नहीं? वो और बात है। एनीवे, तो यहाँ पे जो b है वो b बाई 2 रूट है, राइट? तो इसका स्क्वायर हमने ऐड किया खुद से। अब हमारा धर्म होता है इसको माइनस किया जा रहा है खुद से, और प्लस c तो वो है ही है भाई, वो तो है ही है। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला टर्म a स्क्वायर दिखता है कि नहीं? ये वाला टर्म 2ab दिखता है कि नहीं? और ये b स्क्वायर दिखता है कि नहीं? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं? राइट? Yes, sir. समझ में आ रहा है? देखो अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ पूरा सब कुछ, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत जगह यहाँ पे। ये छोड़ दो, ओके। लुक केयरफुल, हम स्टार्ट कहाँ से किए थे पता था ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहीं से शुरू किए थे। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। पहुँचना है यहाँ, ठीक है। सो रूट ax का स्क्वायर था और ये था, अच्छा ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर। जो बचा उसके बारे में बाद में सोचेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब रूट ax प्लस व्हाट इज b, b बाय 2 रूट का होल स्क्वायर, ओके। अब जो बचा ये वाला टर्म उसको ले लेते हैं उधर। किधर किधर ले लेंगे? उधर। समझ में आया? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, मतलब वहां गया और हो गया b स्क्वायर
सॉरी सही में लिखते हैं उसको b बाई 2 रूट ए का स्क्वायर और ये जाएगा तो माइनस सी। गॉट इट? समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मजा आएगा। अच्छा अभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं, सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो x निकालना, क्या निकालना मुझे? x निकालना है ना। x निकालने के लिए क्या करूंगा? अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। x को अलग रखते हैं, रूट x प्लस b बाई 2 रूट a जो है वो क्या हो जाएगा? अगर ये स्क्वायर उधर ले लो या दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट a का स्क्वायर 1, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। समझ में आया कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4, रूट a का स्क्वायर a, so this is 4a, 4a taken LCM becomes 4ac, so b square minus 4ac by 4a का होल रूट आया कि नहीं? अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, चलो देखते हैं, अभी लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि नहीं? देखो आ रहा है, कुछ आ रहा है, देखते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या फिर उसको वहां भेज सकते हैं? एलसीएम नहीं लेंगे, इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें निकालना तो है सिर्फ x, तो अभी कंबाइन करके क्या मिलेगा? इतना मुश्किल से उसको अलग किया है, फिर से कंबाइन करोगे कुछ फायदा है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? रूट x को रखेंगे ऐसे, बाकी चीजों को उधर भेज देंगे। अच्छा इधर क्या बचा है पहले देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस b बाई 2 रूट है, ठीक है, ये उधर गया तो माइनस b बाई 2 रूट है, और पहले से यहाँ पे था रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। ध्यान से देखो, रूट a x इज इक्वल टू, अच्छा माइनस b प्लस, अच्छा एक और बात, एक छोटी सी बात, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट उठाया तो हम प्लस माइनस लिखना क्या कर गए? भूल गए, यहाँ लिख देते हैं, इसी पे स्क्वायर रूट था ना, you know x square is equal to 25, x is not 5, x is plus or minus 5, right? So a similar fashion जब हमने यहाँ पे लिया तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस, सो यहाँ पे माइनस b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये 2 रूट है और 4a का रूट ओवर भी 2 रूट a ही है, ये दोनों सेम है कि नहीं? देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट है, मतलब नीचे लिख सकता हूँ 2 रूट है। अच्छा अभी ये हम जो रूट है उसको टेकिंग इट टू द डिनोमिनेटर ऑफ द RHS, x will be equal to minus b plus minus root over of b square minus 4ac divided by 2 root a into root a becomes 2a. Congratulations. समझ में आया कि नहीं? Did we get the answer? Yes sir. समझ में आया? अच्छा लगा? कॉन्फिडेंस आया? वेरी नाइस। तो ये जो x का वैल्यूज आया, इसमें से जो प्लस लोगे उसको बोलोगे अल्फा, और यहाँ पे माइनस लोगे तो उसको बोलोगे बीटा। इज इट सेम? लुक एट दिस फॉर्मूला, आया कहाँ से? जनरल फॉर्म से। ओके, so whenever it asks you to find the solution of a quadratic equation and you see that middle term splitting is not possible, factorization is not possible, question is looking difficult to you, the coefficients are also variables looking like constants, कुछ भी हो, blindly you can use in any question, you can use quadratic formula in terms of the coefficients of the polynomial and you can find the both the zeros immediately. Understood? तुम्हें ये स्क्वायर रूट निकालना ठीक से आना होना चाहिए और प्रैक्टिस। ओके, so we understood from graphs, graphical representation, what is a quadratic polynomial, what are zeros, sum of roots, product of roots, how they are used, general form of a quadratic formula,
quadratic equations, okay, and how to use quadratic formula, how it is derived. But ये derivation नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, ये है completing square method भी नहीं है. So we understood everything that is required to solve your basic questions. How to approach what problem and some questions and some tricks we will learn in the next class. Okay. So for this class, this much is all about concepts of class 10 quadratic required for your exam. Thank you. Have a nice day. Thank you. Mama, you quiero. Mama. Mama, you quiero. Mama. Mama, you quiero. Mama, ay, dai, chupa,